Hello students, welcome back to our class, and today's topic is recruitment, and this topic belongs from the chapter staffing for class 12. So come to our topic, recruitment. So student, what is recruitment? Basically, recruitment is that process when an organization disclose their place where they are appointing that employees. Okay, yeah, that place where they are just placing that employees or vacant place को fill करने के लिए filling that place, that is a process known as staffing. That is place is known as recruitment. Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. What is the means of stimulating? Means recruitment एक ऐसा process है जहां पे कि एक organization सर्च करती है employees को या उनको stimulate करती है. Stimulate means motivate करती है. Motivate them to just give an application in our organization. Means कि अगर stimulate कैसे, motivate कैसे, मान लो कि I am a BTech student, मैं एक BTech student हूँ और मैंने CS कंप्यूटर साइंस से कुछ डिग्री ली है बीटेक की, एक डिग्री ली है बीटेक की, और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वैकेंट प्लेस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो अब मेरे अंदर मुझे जब पता चलेगा कि देयर इज अ प्लेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ना कि जस्ट गो एंड गिव द एप्लीकेशन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है मेरा काम बन जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मेरी वजह से वो वैकेंट प्लेस फिल हो जाए. तो दैट इज अ स्टिमुलेटिंग और मोटिवेटिंग. तो स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो इसको जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो दिस इज द स्टिमुलेटिंग द जॉब्स और स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉयज टू द जॉब्स. यही है रिक्रूटमेंट कि आपको बुलाता है, फिल करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने वैकेंट प्लेस को फिल करना चाहता है तो दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ओके, और वो उसको डिस्क्लोज करता है कि इस प्लेस पे नाउ दिस इज द प्लेस इज वैकेंट एंड यू आर वेलकम टू फिल दैट प्लेस. सो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट. Come to the next topic, source of recruitment. First is internal source of recruitment and second is external source of recruitment. What is internal source of recruitment? Internal source of recruitment means that we are selecting the peoples within our ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के अंदर से ही जो पर्सन्स को हायर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. और इन सेकेंड मोड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में वी आर जस्ट सेलेक्टिंग द पीपल्स बियॉन्ड आवर ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज से बाहर जाके पर्सन्स को हायर करते हैं. दैट इज अ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेज, कैसे करते हैं, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो ये देखते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट, हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल सोर्स ऑफ recruitment. So come, what is the internal source of recruitment? Just see it, and what are the process of internal source of recruitment. So just see them step by step. So internal source of sources refers to inviting candidate from within the organization. मैंने पहले ही आपको बताया था कि internal sources refers to inviting candidate from within the organization or within the boundaries of an organization. हम अपने organization के अंदर से ही, उनकी boundaries के अंदर से ही जब persons को hire कर लेते हैं तो that is known as internal source of recruitment. And what are the process of internal source of recruitment? Just see that there are transfer, promotion and layoff. तो देखते हैं क्या क्या होता है transfer, क्या होता है promotion and what is layoff. So transfer, it involves the shifting of an employee from one job to another, from one place to another place. It means what is transfer? Transfer means to putting someone or something from this place to another place, or one place to another place, that is known as transfer. And how this apply in your organization? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई होता है कि पर्सन्स को हम इंटरनली रिक्रूट करते हैं ट्रांसफर के थ्रू. बहुत सिंपल है. इफ एनी डिपार्टमेंट have a vacant place and
एनी डिपार्टमेंट हैव मोर पीपल्स इन देयर डिपार्टमेंट, सो क्या होगा, हमने इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक कंपनी मान लीजिए, एक कंपनी है एबीसी, एबीसी एक कंपनी है एबीसी, और इस कंपनी में देयर आर टू डिपार्टमेंट, वन इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। वी डिनोट मार्केटिंग MA एंड एडवर्टीजमेंट ADV। तो मार्केटिंग MAR, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने MAR से डिनोट कर दिया और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को ADV से। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देयर आर 10 पीपल्स हैं, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में 5 पीपल्स हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वी हैव 2 एक्स्ट्रा पर्सन्स, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पर्सन्स हैं। इन 10 में से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 8 पीपल्स बट देयर इज 10 पीपल्स, एंड इन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट देयर इज 1 स्टाफ, इज दे रिक्वायर्ड 1 स्टाफ मोर, तो इनको एक और की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट ट्रांसफर 1 पर्सन फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। जब हम एक पर्सन को इस प्लेस से उस प्लेस पे ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसफरिंग। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इजी वे होता है वैकेंट प्लेस को फिल कर देने का, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट हम ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज का। सेकेंड वन इज promotion. So what is promotion? It refers to shifting an employee to a higher position. What is to shifting an employee to a higher position? हम higher position पे किसी employee को भेज देते हैं for carrying responsibility, prestige, facilities and pay. Means we just promote. Promoting means just giving one step higher in the ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी पीपल को, किसी भी एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, एक स्टेप हाई कर देते हैं, एक स्टेप हायर उसको प्लेस दे देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। तो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन फिल आवर वैकेंट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ साथ हमें क्या मिल जाता है, या उसके साथ साथ एम्प्लॉय को क्या मिल जाता है, तो जैसे ही हम उसको एक प्लेस ऊपर भेज देते हैं, एक स्टेप आगे कर देते हैं, तो एम्प्लॉय को एक हायर पोजीशन मिल जाती है, कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर थोड़ी बढ़ जाती हैं, प्रेस्टीज उसका बढ़ जाता है, और फिर फैसिलिटीज उसको मिलती हैं, एंड उसको पे भी ज़्यादा मिलने लगता है। तो दिस इज द बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय ऑल्सो एंड फॉर द दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा सा एक ईमानदार और एक अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय बहुत ही ईजी वे में मिल गया बाय प्रमोटिंग द एम्प्लॉय। ओके, गेट इट? So come to the next point, that is layoff. Layoff बहुत easy सा है, to recall the temporary workers for work, means work permanently basically होगा work permanently। okay, permanent base पे हम उसको work करने के लिए बुला लेते हैं। when we have a vacant place and each and every department have sufficient place, sufficient workers, और उसके बाद प्रमोशन करने का भी कोई चांस नहीं है किसी का, then what we can do, we can just recall the temporary worker from work। ये मीन्स कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें कुछ वर्कर्स को या कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ वर्कर्स बुलाए जाते हैं एज अ वर्क की, जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो उनको बुला लिया जाता है कुछ वर्क के लिए, और उसके बाद जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको हटा दिया जाता है। बट दे आर अ टेम्पररी वर्कर, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करते हैं। देन इन दैट कंडीशन व्हेन वी हैव अ वैकेंट प्लेस फॉर परमानेंट वर्कर, तो हम पहले अपने इन टेम्पररी वर्कर को प्रीफर करते हैं, बिकॉज दे आर नोइंग, वो उन्हें हम जानते हैं, दे आर ट्रस्टवर्दी, वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी होते हैं, और they are familiar with our organization also, so हम उनको preference देते हैं। तो these are 3 topics or these are 3 process where we do the internal source of recruitment। So I think so कि you get this all points। So come to the next one, that is advantage and limitations of the internal sources। So student, come up to our next topic, and that is advantage of internal source recruitment and disadvantage of internal source recruitment। Come see the step by step what are the advantage and what are the disadvantage। So employees are
फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव their performance, means he in internal source of recruitment employees get motivated that yes, do the work very good, or complete your work in time, or do the hard work. Why? Because when you are do the good work, so organization's manager or running person that or your manager that give you a promotion. तो promotion के लालच में, अच्छे पैकेज के लालच में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और अपने वर्क को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. यस, सिंप्लीफाइज कर देता है आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को. वाई? बिकॉज इन इंटरनल देयर आर मेनली टू, फर्स्ट इज ट्रांसफर एंड सेकेंड इज योर प्रमोशन एंड थर्ड वन इज ले ऑफ. तो आपके पास सिंप्लीफाइज हो जाता है कि आपको प्रमोशन करना है, या तो ट्रांसफर करना है, या तो ले ऑफ करना है. एंड इन ऑल दैट थ्री कंडीशन यू नो योर एम्प्लॉयज वेरी वेल. आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में वो काम हो जाता है. सेकेंड वन इज मीन्स नेक्स्ट वन इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आपके एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ता है. वाई? बिकॉज that your internal employees know each and every rules of your organization. They are familiar with your organization, they are familiar with your workers also, so they know they haven't need of an extra training and extra working procedures. So that is it for your organization. नो वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम नहीं टूटता है वहाँ पे. अब इफ एन एक्सटर्नल पर्सन कम इन योर इन ऑर्गेनाइजेशन, सो दे नीड अ ट्रेनिंग टू गेट familiar with your work procedure, familiar with your organization, and familiar with your that peoples who are working in your organization. So come to the next topic. Filling jobs internally is cheaper. Yes, obviously filling jobs internally is a cheaper. Why that is cheaper? Because you are not process to advertisement, you and that all process when you give the advertisement in newspaper, in TV, or in any that exchange, that employment exchange and any site, so that becomes very costlier. And in internal organization you just go and find the best one, best person, best employee, and just transfer to them, and you do the promotion of your employees. So this is the cheaper one. Okay, these are the advantages of your internal sources. Come to the disadvantages of or limitations of your internal resources. Okay, so the scope of fresh talent is reduced. Yes, आपका स्कोप जो है फ्रेश टैलेंट का वो रिड्यूस हो जाता है. वाई? सपोज कि कोई अभी एक नया वर्कर और नया स्टूडेंट अभी कोई नई टेक्नोलॉजीज को स्टडी करके आया, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज इन वेरी डिमांड, एंड यू जस्ट हायरिंग द पर्सन्स इन योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो जो नया टैलेंट आया है एंड दैट टैलेंट और दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी डिमांड, तो उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा. सो दैट इज फ्रेश टैलेंट आपको वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा. तो दैट इज अ डिसएडवांटेज. एंड द एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक. दो एम्प्लॉय जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा. व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेथार्जिक? लेथार्जिक मीन्स लेजी. लेजी इन द टर्म कि वो थोड़ा सा काम करने में लापरवाही करेगा. वाई? बिकॉज व्हेन ही नो कि अरे 2 साल में या 3 साल में प्रमोशन तो हो ही जाना है, तो उसके दिमाग में जब ये बैठ जाएगा कि 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा, या एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आई जस्ट गेट इंसेंटिव, आई जस्ट गेट प्रमोशन, तो वो अपना उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं पे करेगा, तो लेथार्जिक हो जाएगा. ओके, then move to the next point. A new enterprise cannot use internal resources of recruitment. Obviously if there is a new organization, so how we can select the that employees internally? कैसे लेगा? अब एक एग्जांपल ले लीजिए. जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने एक एंटरप्राइज अपनी खोली, एंड दैट इज AB कंपनी, और इसको स्टार्टअप हुए अभी ओनली 1 ईयर्स हुए हैं. 1 ईयर्स पहले मैंने स्टार्टअप किया है, एंड आई नीड 100 पीपल्स
100 पीपल्स टू वर्क विद अस। तो अब हम यहाँ पे एंड आई हैव ओनली 150 पीपल और 150 एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन माई फर्म। तो अब यहाँ से मैं कैसे इनको रिक्रूट कर सकता हूँ? तो देयर इज अ नो चांसेस टू टेक दिस प्रोसेस इंटरनल रिसोर्सेज इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल फोर्सेस का मदद लेना ही पड़ेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज मे ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि अब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कर को या कितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को आप एक टाइम टू टाइम पे ट्रांसफ़र कर दे रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सो आप प्रोडक्टिविटी उनसे निकाल ही नहीं पाओगे, उनसे वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाओगे। सो दैट इज़ अ लॉस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? सो जस्ट सी द एन एग्जाम्पल। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वेरियस डिपार्टमेंट। मान लीजिए एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक HR डिपार्टमेंट हो गया, एंड एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। इतने सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं एंड वन पर्सन इज वर्किंग इन योर फर्म। पहले आपने उसको अकाउंटिंग में रखा, फिर आफ्टर 3 मंथ्स जब तक वो अकाउंटिंग की वर्क्स को सीखता या अपनी प्रोडक्टिविटी को आपको देता वहाँ पे, तब तक आपने उसको मार्केटिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स 2, 3, 4 और 6 मंथ, फ्यू मंथ्स बाद आपने मार्केटिंग से उठा के उसको ट्रांसफ़र कर दिया HR में। जब तक वो मार्केटिंग में आपको अपनी परफॉर्मेंस देता, प्रोडक्टिविटी दिखाता, तब तक आपने उसको HR में ट्रांसफ़र कर दिया एंड गोज सो ऑन। तो जैसे जैसे उसको मौका मिलता वैसे वैसे आपने उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं, कई सारे वर्कर के साथ अगर फ्रीक्वेंटली बेसिस पे इन योर फर्म दिस इज गोइंग ऑन, देन व्हाट? देन दिस इज अ disadvantage for your firm. This is the loss from your firm because your firm can't get productivity from that employees. Okay, so these are the advantage and these are the disadvantage of the internal source of organization. होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको स्टूडेंट्स कुछ दिक्कत है या कुछ नहीं समझ में आता है, यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे बेटर रूप में करने की आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।